శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం.
कल्याण निधये निधयेऽर्थिनां श्रीवेंकट निवासाय श्रीनिवासाय ते नमः। श्रौत स्मार्त आदिकं कर्म निखिलं येन सूत्रितं तस्मै समस्त वेदार्थ विदे विखनसे नमः। शुक्लांबरधरं विष्णुं शिशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। श्री गोविंद गोविंद गोविंद। अथ भगवतो महापुरुषस्य महाविष्णोः आज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयपरार्थे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे आदिवराहक्षेत्रे वेंकटाचले कल्याणमण्डपे भगवत भागवत आचार्याणां सन्निधौ एवं गुण विशेषण विशिष्टायाम् अस्यां शुभतिथौ अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रियः पतेः पुरुषोत्तमस्य श्रीमते अखिलांडकोटि ब्रह्मांड नायकस्य श्रीभू नीला समेत श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सव कर्मणि अस्य यजमानस्य అందరూ మీ గోత్రాన్ని మనసులో స్మరించండి. మీ పేరుని, మీ ధర్మపత్ని పేరుని, మీ పిల్లల పేర్లని, మీ కుటుంబ సభ్యుల పేర్లని అందరూ మనసులో స్మరించి స్వామి వారిని మనసారా ప్రార్థించండి. అందరూ చెప్పండి. మమ సహ కుటుంబస్య సబాంధవస్య సపరివారస్య क्षेमस्थैर्य धैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं राजद्वारे राजमुखे सर्व अनुकूल सिद्ध्यर्थं श्री श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक कल्याण महोत्सवं श्री वैखानस भगवच्छास्त्र मार्गेण आचार्य मुखेन अहं कारयिष्ये सर्वं श्रीनिवासार्पणमस्तु. ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் திருமலை திருப்பதியினின்று நேரலையில் ஒளிபரப்பிக் கொண்டிருக்கும் ஸ்ரீ ஸ்ரீதேவி ஸ்ரீ பூதேவி சமேத நலம் திகழ் நாரணனாம் ஸ்ரீ வெங்கடநாயகனின் திருக்கல்யாண உற்சவத்தை சின்னத்துறையில் கண்டு வணங்க அமர்ந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் இரு கரங்கள் கூப்பி வரவேற்கின்றது. இன்றைய தினம் பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் என்று கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் அன்பான பக்தர்களின் உய்வின் பொருட்டு துணிந்தது சிந்தை துழாய் அலங்கல் அங்கம் மணிந்தவன் பேருள்ளத்து பல்கால் பணிந்ததுவும் வேய் பிறங்கு சாரல் விரல் வேங்கடவனையே வாய்த்திரங்கள் சொல்லும் வகை என்று 2ஆம் திருவந்தாதியில் பூதத்தாழ்வார் திருத்துழாய் மாலைகளை தன் தடம் தோள்களில் தோள் மாலையாகச் சாற்றிக்கொண்டு மேலும் விருப்புற்று சுடர்முடி தாளினைகளிலும் சாற்றிக்கொண்டும் தன் அவையவ அழகாலே அடியார்களை தன் வசப்படுத்தும் திருவேங்கடன் அந்த திருவடி பணிந்து அவனின் திருவடி இணைகளை பணிந்து பிரார்த்திக்கும் ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் அனைத்து பக்தர்களையும் வாழ்த்தி சுடர் முடியானின் கல்யாண மாலையை காண வரவேற்கின்றது. மகிழ்ந்தது சிந்தை திருமாலே மற்றும் மகிழ்ந்தது உன் பாதமே போற்றி மகிழ்ந்தது அழல் ஆழி சங்கம் அவை பாடி ஆடும் தொழிலாகம் சூழ்ந்து துணிந்து என்று மற்றொரு பாசுரத்தாலே பூதத்தாழ்வார்
எம்பெருமான் திருமலை அப்பனின் திருவடி வாரத்தில் பணிந்து பிரார்த்திக்கும் தம் பொருட்டல்ல, எதிர்காலத்தில் வரும் அனைத்து பக்தர்களின் பொருட்டு அவனை தேடி வரும் மண்டி வரும் திருவடி பணிந்து வரும் பக்தர்களின் கூக்குரலை கேட்டு கோவிந்த நாமத்தை செவிமடுத்து அவர்களின் பக்தி பரவசத்தாலே இவன் பாரவசியத்தாலே பிரார்த்தனை ஏற்க பிரார்த்திக்கும் இந்த பாசுரத்தை மேலே அர்த்த விசேஷங்களை சேவிப்போம். தஸ்மை சமஸ்த வேதார்த்த விதே விகனசே நமः. சூத்ராணாமன்யக்லுப்தானாம் நேத்ரம் யச்சஸ்தனீகிருதம் சூத்ரம் வைகான சம்பந்தே பகவத் கர்ம சூஜகம். ஓம் பகவதோ பலேன பகவதோ வீர்யேன பகவதஸ்தேஜசா பகவத கர்மணா பகவதானுகృహீத பகவதானுத்யாதோ பகவந்த்யாத்வா பகவத் கர்ம கரிஷ்யாமி தத் பகவான் நமன்யதாம் பிராணாநாயம்யா. अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्रीपदे पुरुषोत्तमस्य श्रीमदखिलाण्डकोटिब्रह्माण्डनायकस्य परव्यूह विभव अन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि स्तण्डिलपरिस्तरण सर्वोपकरण सुत्यर्थं सर्वत्र प्रोक्षणार्थं शुद्धि पुण्याहवाचनाख्यं कर्म करिष्यन्नादौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनाख्यकर्मणि तरङ्गङ्करकाराधनं करिष्ये. ओम धारासुरप्तशिरमानशेषु दरत्तरिच्च परिपूरितेषु अपोभिगृह्णन् प्रतिपादयिष्ये कृणोमि तत्तागं सुचिरगं सुधर्मा. इदमापश्यमा शिवतमा शान्ता शान्ततमा शुभा शुभतमा पूता पुततमा पुण्या पुण्यतमा मेध्या मेध्यतमा अमृता अमृतरसाः पूता ब्रह्म पवित्रेण पूता सूर्यस्य रश्मिभिः. ये देशतं वरुणये सहस्रं यज्ञया पाशापितरा पुरुत्रा तेभ्यो न इन्द्रस्य विदोतविष्णुर्विश्वे देवा अमञ्जन्तमरुतस्वस्त्या. अस्मिन् कुम्भे वं वरुणमावाहयामि प्रचेतसमावाहयामि तक्ताम्रधरमावाहयामि यादस्पतिमावाहयामि. वरुणाय नमः इदमासनम्. वरुणाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. वरुणाय नमः प्रचेतसे नमः रक्ताम्बरधराय नमः यादस्पतये नमः. पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. सुधीश्वराय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्. वरुणाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि. आदौ निर्विघ्नेन परिसमा आवाप्यर्थं विश्वक्सेन आराधनं करिष्ये. विश्वक्सेनं चतुर्बाहुं शङ्खचक्रसमन्वितं जयापतिं शृङ्गयेदं सुपुष्पवर्धमाहनं पूर्वाषाढोत्तमं देवं दक्षिणामगमर्चयेत्. आग्नेयस्मादजामहे त्वा विश्वेशदात्मं हितो न शुम्भो वैराजन्ते हृदयसत्तां प्रयिष्याम देशोपधानामनादर्यामे सस्तां धनिदान् दधात्. पद्माकारमण्डले वम्बूह विश्वक्सेनमावाहयामि शान्तमावाहयामि हरमावाहयामि अमितमावाहयामि नित्यानवायनमावाहयामि. तद्दक्षिणे सूत्रवतीमावाहयामि वामे जगामावाहयामि सूत्रवतीर्गासमेत श्री विश्वक्सेनस्य इदमासनम्. विश्वक्सेनाय नमः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि. विश्वक्सेनाय नमः पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि. विश्वक्सेन स्मृतो राजा भगवान् सर्वकर्मणः तस्मात् नान्यमपासीत कर्मणां विघ्नशान्तये. आरम्भे कर्मणां पश्चिम विज्ञानां प्रजमात्युजा कुर्यात् सपरिवारस्य विश्वक्सेनस्य पूजनं भवद्भरणज्ञातः सुपुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये. वाच्यतां सुपुण्याहं करोमि कुरुष्व स्वस्ति सुप्रोक्षितम् अस्तु. प्रजापति प्रजतां प्रजतां प्रजापतिः शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि शां यन्तु घोराणि शां यन्तु पापानि शां यन्त्वा धीतयः शुभानि वर्धन्तां वर्धन्तां शुभानि. अतो देवा अवन्दनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः. ततो धर्माणि धारयन्ने विष्णोः कर्माणि पश्यति यतो व्रतानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यस्सखा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे वचक्षुरादरं तद्विप्रासो विपण्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धरे. विष्णोर्यत्परमं पदं द्रविणोदा द्रविणसस्तुरस्य द्रविणोदासनरस्य प्रियं सते द्रविणोदा वीरपदे मिषन्नो द्रविणोधारा आसते. दीर्घमायुः यत्पुण्यं नक्षत्रं तत्पत्कुर्मीदो भव्यशं यदा मयि सूर्यपदेति अथ नक्षत्रं नयति यावत् तत्र सूर्यो गच्छेत् यत्र जघन्यं पश्येत् तावत् गर्वेद यत्काले स्यात् पुण्याः एव कृते. ओं भूः भूर्भुवस्वरमस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यकर्मणि सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं
भवन्तो भ्रमन्तो पुण्याहङ्क्रमणोऽस्तु 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 स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधात् पूर्वोक्तयमङ्गलविशेषविशिष्टायामस्यां सुभद्रौ श्रीभूनिलासमेत श्रीनिवासस्वामिनः सर्वत्र प्रोक्षणार्थं पुण्याहं स्वस्तिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति कर्मणे स्वस्ति हृद्यास्म हव्यैर्नमसो वसत्या मित्रं देवं मित्रधेयिन्न अस्ते अनुराधानः हविषा वर्धयन्तः सदञ्जीवेम श्रुतस्य मीराः पूर्वोक्तकर्मणि पूर्वोक्तयमानाय पुण्याहं वृद्धिं भवन्तो भ्रमन्ते कर्मर्ध्यतां 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 वृद्धिः समृद्धिः पुण्याहं समृद्धिः आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे तथा तना महेरणाय चक्षसे यो वश्यपदमोरसस्तस्य भार्यते हनः उषतीर्व मातरः तस्मा अरङ्गमामवो यस्य क्षयाय जिन्वथा आपो जनयथा जनः ओम पवमानस्वर्जनः पवित्रेण विदर्शनिः यः पोता सपुनातुमा पुनन्तुमा देवजनाः पुनन्तु मनमोधिया पुनन्तु विश्व आयवः जातवेदः पवित्रवरे पवित्रेण पुराहिमा शुक्रेण देवदीत्यते अग्ने कृत्वा क्रतूं व्रणे यत्ते पवित्रमर्चिषि अग्ने वितरमन्तरा ब्रह्मदेन पुनीमहे उभाभ्यां देवसवितः पवित्रेण सवेन च इदं ब्रह्म पुनीमहे वैश्वदेवे पुनते देव्यागात् यस्ते भक्मे स्तनवो वीतपृष्ठाः तजामतं तस्सदमार्त्येष वयक्तुस्यामपतयोरयीनां वैश्वानरो रश्मिभिर्मा पुनात् वादः प्राणेने शिरोमयो भूः द्यावा पृथिवी पयसापयोभिः अर्धावने जिग्मिये मा पुनीतां बृहद्भिः सवितस्त्रुभिः वरिशिष्टैर्ते भवन्मभिः अग्ने रक्षैः पुनाहिमा येन देवा अपनतां येनापो दिव्यं कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानेरध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं सर्वकं सपूतमस्नाति सुदितं मातरिश्वना पावमानेर्यो अध्येति ऋषिभिः संहृतकं रसं तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरकं सर्पिर्मधूदकं पावमाने स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि पयस्वतीः ऋषिभिः संहृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितम् पावमानीर्तिशन्तु नः इमं लोकमथा अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवैर्देवैः समाभृताः पावमानी स्वस्त्यजनीः सुदुःखा हि घृतश्चितः ऋषिभिः संभृतो रसः ब्राह्मणेष्वमृतकं हितं येन देवाः पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मा प्राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहे इन्द्रस्व नीति सहमा पुनात् सोमस्वस्त्यावरुणः समीच्या यमो राजा प्रमृणाभिः मा जातवेदा मूर्चयन्त्या पुनात् तच्छंयोरावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ओम प्रात्यान्तिशदे मार्तजो मार्जयन्तां दक्षिणायान्तिशमासाः पितरो मार्जयन्तां प्रधीत्यान्तिशगृहाः प्रशमो मार्जयन्तां उदेत्यान्तिस्यापमोषधयो वनस्पतयो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायान्तिशंवत्सरो यज्ञमधर्मार्जयन्तां मदोधराधरैर्नागेभ्यो मार्जयन्ताम् वास्तोष्पदे प्रतिजाने ह्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः यत्वे महे प्रतिरन्नो चतुष्पशन्नयेधिद्विपदे सञ्चतुष्पदे वास्तोष्पदे शिक्मया सकुं सदा ते सक्षीमहि नन्वया गातुमत्या आवह क्षेमपदयो गेवरन्नो यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः अमीवः वास्तोष्पदे विश्वारूपाण्या विशन् सखा सुषेवयेथिनः शुभगं शुभं वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पादर्घ्याजमणीं समर्पयामि विश्वक्सेनाय नमः यथासुखं यथास्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पटनागमनाय च விஸ்வக்சேன ஆராதனை பூசுத்தி என்று அனைத்து கிரமங்களையும் முடித்த பிறகு இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி திருமணத்திற்கு உரிய அந்த பாலிகையில் தீர்த்தத்தை சேர்த்து அனைத்து நவதானியங்களையும் அந்த பாலிகைகளில் சேர்த்து அந்த தானியத்திற்கு உரிய கிரமங்களை அதாவது தீர்த்தத்தையும் புரோட்சிக்க சித்தமாக இருக்கும் இந்த அர்ச்சக சுவாமி மேலே கிரமங்களை சேர்க்கும் பொழுது இப்பொழுது சேவித்த அந்த பாசுரத்தின் பொருளை பெருமான்
அழல் ஆழி சங்கம் அவை பாடியாடும் தொழிலாகம் சூழ்ந்து துணிந்து என்று 2ஆம் திருவந்தாதில் பூதத்தாழ்வார் சாதித்தருளியது அங்கன் நாயகன் அடல் ஏறு அடியார் மனத்து ஆசை அடியார்க்கு அந்நியன் அப்பன் ஸ்ரீ சிவப்பதியான ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசனிடத்தே இத்தனை அடை மொழிகள் அவனுக்கு எப்படி? அங்கன் நாயகன் அடல் ஏறு அடியார் மனத்து ஆசை அடியார்க்கு அந்நியன் அப்பன் ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீனிவாசனிடத்தே சென்றடையும் பக்தர்களின் மனம் ஈடுபாடு அடைந்து மகிழ்ந்த மனத்தின் வெளிப்பாடு வாக்குக்கு அமைந்ததாம். அத்தனை வெளிப்பாடுகள் ஏற்படுகிறது இவனிடத்திலே அடையும் பக்தர்களுக்கு. மனத்தில் உள்ள கவலைகளை மறக்கச் செய்கிறான், மறக்கதோடு மறந்தே போகச் செய்கிறான். ஏனென்றால் மேலும் அருள் பாலிப்பதாலே அருள் கிடைப்பதாலே பட்ட கஷ்டங்கள் அனைத்தும் மறைந்து போகிறது. ஆகவே அவன் அங்கன் நாயகன் அடல் ஏறு. பெருமான் அடியார்களின் துன்பத்தை கண்டக்கால் அடல் ஏறு போல அவற்றை எதிர்த்து நின்று ஜெயிக்கக்கூடிய அடல் ஏறாக மாறுகின்றான். அடியார் மனத்து ஆசையாக இருப்பதால் தான் அவர்களின் துக்க குரல்கள் நன்றாக செவிமடுத்து அதை தீர்க்க அவன் ஆசைப்படுகிறான். அடியார்க்கு அந்நியன் என்றால் தகப்பன் ஸ்தானத்தில் அண்ணன் என்று சகோதர பாவத்திலும் இருப்பவன் இவன். அப்பன் சொல்லவும் வேண்டுமா என்ற இந்த சொல்லுக்கு அர்த்தத்தை ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீனிவாசனிடத்தே சென்றடையும் பக்தர்களின் மனம் ஈடுபாடு அடைந்து மகிழ்ந்த மனத்தின் வெளிப்பாடு வாக்குக்கு அமைந்ததாம். அப்படி அந்த வாக்குக்கு அமைந்ததாலே தோன்றுகிறது இந்த கோவிந்த நாமம், கோவிந்த கோஷம். அடியார்களின் மனத்திலின்று உச்சாடனத்தில் பீரிட்டு கொண்டு வருகிறது இந்த உச்சாடனம் கோவிந்த நாமம். மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய கிரமத்தை சேவித்து மேலே பாசுரத்தின் பொருளை நன்றாக செவிமடுத்து அனுபவிப்போம். श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिक महोत्सवा किञ्चक्रमणि प्रतिशरबन्धन देवताराधनं करिष्ये। ओं यमर्पयन्ति मनयो हविर्योजो हि डानर्विविधा विराजन्ने तम्मयदोषायस्याननाग्नविपिना निपतन्ते। ओं शेषमावाहयामि सहस्रशीर्षमावाहयामि अनन्तमावाहयामि नागराजमावाहयामि। रक्षासूत्रदेवताभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि गुडोपहारं निवेदयामि ताम्बूलं समर्पयामि सर्वोपचारान् समर्पयामि। ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगत् स्वस्ति देव्यनीतर निर्वणाः स्वस्ति पूषा असूरो दधातन स्वस्ति ज्ञावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमपप्रमामहे सोमं स्वस्ति भवानस्य यस्पतिः बृहस्पतिं सर्वागणं स्वस्तये स्वस्तया आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्य स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवामन्त्रभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्रं हासः स्वस्ति मित्रावरुणा स्वस्ति मध्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रस्याग्निस्य स्वस्ति नो अदिते कृधि स्वस्ति मन्थामनूजरेम सूर्यादिन्द्रमधा विव पुनर्दधताग्नादाजानदा सङ्गामेमहि स्वस्त्ययानन्तार्क्षमरिष्टनेमिं महद्भूतं वायसं देवतानाम् असुरग्नमिन्द्रासकं समत्सु बृहद्यशो नावामिवारोहेम अम्भोमुचामाङ्गिरा सङ्गयं यस्वस्त्यात्रेयं मनादाजतार्क्ष्यम् पर्यादबानिशरणं प्रपद्ये स्वस्तिशं बाधेष्वभायन्न अस्ते शुभगुं शुभाम्. இந்த கிரமங்களுக்கு பிறகு நம்மையும் பெருமானுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த கங்கணத்தை நம்மையும் காணச் செய்து இப்பொழுது கிரமத்தோடே ஆகவ விதி முறைப்படியாக பெருமானுக்கு கங்கணத்தை சமர்ப்பித்து மேலே ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பூதேவி தாயாருக்கும் இந்த கங்கணத்தை சமர்ப்பித்து நம் பொருட்டாகத்தான் இந்த கங்கணத்தை இவர்கள் ஏற்கிறார்கள். அதன் பொருட்டு அதை தொடர்ந்து தான் இந்த பாசுரத்தின் அர்த்த விசேஷங்கள். இப்படி மகிழ்ந்த வாக்குக்கு அமைகிறான், இந்த பக்தர்களின் வாக்குக்கு அமைகின்றான். மகிழ்ந்ததாலே வாக்கு, அந்த வாக்கு பிரயோகத்தாலே வருகிறது இந்த கோவிந்த நாமம். இதை சொல்லிக்கொண்டே மலை ஏறினால் எந்த துன்பமும் ஏறாது, துன்பங்கள் எல்லாம் கடந்து போகும் என்பதே ஆழ்வாரின் திவ்ய உபதேசமாக அமைந்தது. தாமோதரனின் திருவடி இணைகளையே பாடி மங்களாசாசனம் செய்து மகிழ்ந்ததாம் இந்த ஆழ்வார்களின் உபதேசத்தாலே நன்றாக செவிமடுத்து அடியார்கள் தன்னடைவே இவன் திருவடி வாரத்தில் பிரார்த்திக்கும் அனைத்து பலன்களையும் பெற பாடிக்கொண்டே பெருமானின் அடியார் குழாங்களுடனே கூடி அடியார்களின் உடலும் மகிழ்ந்ததாம். எப்படி? மலையேறும் பொழுது எந்தெந்த ஊரில் இருந்தோ நாம் சந்திக்கின்றோம், எவை யார் என்று முன் அறிவிப்பு அன்றே
அவைகளை சந்தித்து ஒரு தாகம் மலை ஏறும்பொழுது தாகம் என்று வேண்டினால் எவரோ பக்கத்தில் இருப்பவர் தண்ணீர் கொடுப்பார்கள் என்று இந்த அடியார் குழாங்களுடன் கூடி அடியாரின் உடலும் மகிழ்ந்ததாம். பெருமானின் திருவாயுதங்களான திருவாழி, பாஞ்சஜன்யம் மற்றும் அதாவது அவனிடத்தில் உள்ள ஆயுதங்கள் அனைத்தையும் கொண்டாடி பாடி அடியார் குழாங்களுடன் கூடி இந்திரியங்கள் அனைத்தும் கோவிந்தனையே அந்த நாமத்தையே அனுபவிப்பதாலேயே ஆனந்தித்திருக்க இப்படி மகிழ்ந்து இருப்பதே திருமலை வாழ் அடியாளின் தொழிலாகவே அமையுமாம். ஏனென்றால் மலை ஏறும் பொழுதும் அங்கு சேவிக்கும் பொழுதும் அந்த திவ்ய தலத்தில் இருக்கும் பொழுதும் வேறு எந்த நினைவும் வராது அவர்களுக்கு. எந்த நினைவும் அழிக்கப்பட்டு விடும். இவன் நினைவாகவே இவனிடத்தில் வேண்டும்படியாகவே இவன் கூக்குரல் இந்த கோவிந்த நாமத்த கோஷத்தின் திருச்செவி சாற்றுவதாகவே அப்படியே தோன்றும். எந்த கண்ணு செமிட்டால் எதை தவறவிடுவோம் என்று பக்தர்கள் திரும்பி திரும்பி இவனையே அந்த கோபுரத்தையே சுற்று சூழலையே நினைத்து அனுபவிக்கும்படியாக இருக்கும். அப்படி ஒரு ஈர்ப்பு இந்த திருமலைக்கு உள்ளது. திருமலையும் திருமலை வாசனையும் பணிவதாலேயே உண்டாகும் மேன்மைகளே ஸ்ரீ பூதத்தாழ்வார் திருமலை வாசனை தீங்கரும்பை தெய்வத்துக்கு அரசனான பெருமானை குறித்து சாதித்தருளிய ஈரச் சொற்கள். பாசுரத்தின் சாரம் இது. சேணுயர் திருமலையை ஒரு காடென்று நினைக்கக்கூடாது. பெருமான் தாயாரின் திருவடி இணைகள் ஓடி திரிந்த வீடு இது. பல வகை ஞானிகள் நிறைந்த இடத்தை காடு என்று சொல்லுதல் கூடாது அல்லவா? லக்ஷ்மி வராகர் என்ன, கோளரி சிங்கமான நிருசிம்மன் என்ன, இவர்களை வணங்க வரும் நித்தியசூரிகள் என்ன என்று ஞானாதிக்கம் பெற்ற க்ஷேத்திரம் இது. அங்கு சென்றாலே ஞானம் பெருகும், மனத்திற்கு நிம்மதி ஏற்படும். திருமலை பாப்பிகளின் பாப்பங்களை போக்குமிடம். திருவேங்கடம், பரமபதம், பார்க்கடல், தேவலோகம் என்றும் மேலே இங்கே உள்ள மற்ற திவ்ய தேசங்கள் எல்லாவற்றையும் காட்டிலும் திவ்ய தம்பதிகள் உகந்து அருளின இடம் இந்த திவ்யதலம் திருமலை. திருவேங்கடமே என்று சுவாமி திருமழை செய்கிறான் நான்முகன் திருவந்தாதியில், வேங்கடமே விண்ணோர் தொழுவதுவும் மெய்மையால், வேங்கடமே மெய்வினை நோயை தீர்ப்பதுவும், வேங்கடமே தானவரை வீழ தன்னாழி படையை தொட்டு வானவரை காப்பான் மலை என்று 3 இடத்தில் வேங்கடமே வேங்கடமே என்று வெவ்வேறு அர்த்தத்தில் புனருக்தி தோஷமில்லை. வேங்கடமே விண்ணோர் தொழுவதும், மெய்மையால் வேங்கடமே மெய்வினை நோய் தீர்ப்பதும், வேங்கடமே தானவரை வீழ தன்னாழி படையை தொட்டு வானவரை காப்பான் மலை என்று 3 இடத்திலே சாதித்திருப்பதன் பொருள், வேங்கரோ அமிர்தபீஜம் சியாத்து கடம் ஐஸ்வர்யம் உஷ்யத்தே என்கிறபடியே வேங்கடம் எனும் சொல்லுக்கு ஐஸ்வர்யம் மோக்ஷம் இரண்டுமான மலை, அதை அளிக்கும்படியான மலை, மலையப்பன் என்ற பொருள் உண்டு. மோட்சத்திற்கான தேவர்கள் தொழுது செல்கின்றனர். ஐஸ்வர்யம் பெற்று வாழ்வதற்கு இணங்க பூலோகவாசிகள் வணங்கி எழுகின்றனர். வினைகளை எரித்து சுகத்தை அருள்வதாலே அனைவரும் இங்கே வந்து வணங்கி எல்லா துயரங்களும் தீர பெற்று மகிழ்ச்சியோடு செல்வது கண்கூடு இன்னும் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம். இப்பொழுது பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க இருக்கும் இந்த கங்கணத்தை அர்ச்சக சுவாமி நம்மையும் காண செய்ய, ஆகவே வேங்கடமலை ஏற்றத்தை உத்தேசித்து திருமழிசை ஆழ்வார் இப்பாசுரத்தின் 3 முறை வேங்கடம் எனும் திருநாமத்தை இட்டே இப்பாசுரத்தை அருளி செய்து உள்ளார் வெவ்வேறு அர்த்த விசேஷங்களாலே. இப்பாசுரத்தை அருளி செய்ததன் பொருள், பெருமானின் திருநாமத்தையும் எழுந்தருளியுள்ள க்ஷேத்திரமான திருவேங்கடத்தையும் நாமத்தையும் சொல்லுவதாலே, அதாவது உச்சரிப்பதாலேயே அனைத்து பாப்பங்களும் நசிந்து போய்விடும். வேங்கடவாணனின் திருநாமத்தை சொல்வதாலே நசிந்து போனால் என்ன, உடனே பெருமானின் அனுகிரகம் பெற்றால் தானே அது நசிந்து போகும். அவன் அனுகிரகம் தர விழைந்து இருப்பதால் தான், ஆசை பெற்றிருப்பதால் தானே அந்த பக்தர்கள் எந்த பக்தர்களின் அனுகிரகிக்க வேண்டும் அவன் எண்ணத்துடன் கூடி இருக்கிறானோ அந்த பக்தர்களை தன்னிடத்தை வசீகரிப்பான், தன் க்ஷேத்திரத்திற்கு வரச் செய்வான், தன்னை காணச் செய்வான். ஏன் க்ஷேத்திரத்திற்கு வரச் செய்தால் கூட இந்த ஒளிபரப்பு மூலமாக நம்மை காண செய்கின்றான். அதுவும் அவன் அனுகிரகமே. எங்கும் நிறைந்திருப்பவன் அவனுடைய அனுகிரகம் இல்லாத ஒரு செயலும் நடைபெறாது. இந்த திருநாமத்தை சொல்வதாலே கூற்றமும் சாரா, கொடுவினையும் சாரா, தீ மாற்றவும் சாராது என்று மற்றொரு பாசுரத்தாலே ஆழ்வார் சாதித்தருளியுள்ளபடி இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமிக்கு மேலே திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய கிரமங்களை செய்விக்க திருமுன்பு எம்பெருமான் திருமுன்பு அவரும்
அந்த கங்கணத்தை சாற்றிக்கொண்டு மேலே இந்த கிரமங்களை தொடர இருக்க படிப்படியாக இந்த திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் நடைபெறும் அனைத்து கிரமங்களையும் சேவித்துக் கொண்டே ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களையும் தீச்சொற்களாலே எம்பெருமானை போற்றியருள போற்றியார வாயார பாடியருளிய அனைத்து பாசுரங்களின் பொருள்களை விளக்கமாக அனைத்தும் பக்தர்களின் பொருட்டே சாதித்தருளியுள்ளது. நன்றாக செவிமடுத்து மேலே இந்த வேத கோஷங்களையும் செவிமடுத்தும் பெருமானின் குணங்களையும் அனுபவித்தும் மேலே சேவிப்போம். இப்பொழுது சற்று திருக்கல்யாண உற்சவத்திற்குரிய கிரமங்களை நன்றாக கண்டு கழிப்போம். பக்தர்களை பலரை பெறுவதற்காக मह्यम जिंत ममजान हव्याकोति सत्यामन सौमे अस्ते ये नौमानिका आंकतमच्चनाहं विश्वे देवासो अधिपूजदामे देवी षडर्वे ऋणकृणोत विश्वे देवास यहमीर्यत्थं महास्महि प्रजगामा तनोभिर्मारधामत्वशते सोमराजन् जातवेदो भुवनस्य रेतयः सिञ्चतपसो यज्ञनिश्यते अग्निमश्वत्थादिहव्यवाहकं शमे गर्भाञ्जनयज्ञोमयो भूः आदितेन मन्यस्व अनवदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ब्रह्मजिज्ञानं प्रथमं परस्तादुषीमतसृजो वेन आपः सबध्नया पपमा अस्य विष्टासतश्च यो नमसतश्च भवः मों भूब्रह्माणमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि पितामहमावाहयामि हिरण्यगर्भमावाहयामि ब्रह्मणे नमः इदमासनं सोमो धेनुकं सोमो अर्वन्तभाषकं सोमो वीरङ्करमञ्जन्तरात् साधन्यं विदत्यकं च भेगं च श्रवणं योदना चतुष्पै ओं भूस्वममावाहयामि ओं भवर्जिज्ञाकमावाहयामि भोगं सवृद्धमावाहयामि ओं भूर्भवस्वश्चन्द्रमावाहयामि सोमस्य इदमासनं ब्रह्मणे नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि सोमाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि सोम प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवता वर्धयित्वन्नाकस्य प्रश्ने यजमानोऽस्ते सप्तऋषीणागं स्कृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रोक्ष्य पवित्रे स्तो वैष्णव्ये स्तो जिग्नये स्तो वाजभूते स्तो विष्णोर्मनसा भूते स्तो जिग्नस्य पावने स्थः परशरस पवित्रे स्तो वैष्णव्यो देवसवितप्रसवनात् तच्छत्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मि भेदापो देवीरग्रे पवो अग्रे गुवोग्रे यमं यज्ञं निगदाग्रे यज्ञपदन्धत्तयस्मानिन्द्रोग्रणीरं प्रोक्षितास्था विष्णुमावाहयामि महाविष्णुमावाहयामि सदा विष्णुमावाहयामि व्यापिनारायणमावाहयामि ब्रह्मण्णप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य प्रश्ने यजमानोऽस्ते सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छा प्रणययज्ञं देवतावर्धयित्वन्नाकस्य प्रश्ने यजमानोऽस्ते सप्तऋषीणागं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञं यजमानं च धेः ओं प्रणया ओमप्रणितसमप्रणयत्वापो देवे प्रणयानि यज्ञकं सुखं साधयन्तुनः ओं प्रजापतिमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निमावाहयामि सोममावाहयामि अग्निसोमावाहयामि प्रजापतिमावाहयामि ब्रह्माणमावाहयामि इन्द्रमावाहयामि वसूनावाहयामि मरुतावाहयामि रुद्रानावाहयामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णुमावाहयामि बृहस्पतिमावाहयामि मित्रमावाहयामि वरुणमावाहयामि आदित्यानावाहयामि अश्विनावाहयामि पूषणमावाहयामि कक्षमावाहयामि कक्षदेवतसोममावाहयामि औपासनयज्ञमावाहयामि यज्ञदेवत विश्वान् देवानावाहयामि सर्वदेवानावाहयामि आज्ञभागे प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्नये दृष्टनोभामि सोमागे दृष्टनोभामि अग्निसोमाभ्यां दृष्टनोभामि प्रजापतये दृष्टनोभामि ब्रह्मणे दृष्टनोभामि इन्द्रागे दृष्टनोभामि वसुभ्यो दृष्टनोभामि मरुद्भ्यो दृष्टनोभामि रुद्रेभ्यो दृष्टनोभामि अपवपस्पृश्य श्रीमहाविष्णवे दृष्टनोभामि बृहत्पये दृष्टनोभामि मित्रागे दृष्टनोभामि वरुणागे दृष्टनोभामि आदित्येभ्यो दृष्टनोभामि अश्विभ्यां दृष्टनोभामि पूष्णे दृष्टनोभामि कक्षागे दृष्टनोभामि कक्षदेवता सोमागे दृष्टनोभामि औपासनयज्ञागे दृष्टनोभामि यज्ञदेवता विश्वेभ्यो देवेभ्यो दृष्टनोभामि सर्वदेवेभ्यो दृष्टनोभामि आद्यं तृप्यतिस्रगामि चरं तृप्यतिस्रगामि अग्ने द्योतिरसि समितिः स्वाहा अमृतमसि वारुणमसि अन्तरितकं रक्षो अन्तरिता अरातयः प्रत्युष्टकं रक्ष प्रत्युष्टा अरातयः चित्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः वाक्पतिस्थापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः देवस्तापनात् तच्छित्रेण पवित्रेण वसो सूर्यस्य रश्मिभिः कृतसम्पूर्णावासमिधो गृहीत्वा मूलाग्राभ्यां कृतं स्पर्शयित्वाभ्यर्च्य अक्षता आज्य चरुभिः
इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्त्वेका च शतं च सहस्रं च आयुतं च नियुतं च प्रयुतं च अर्पुदं च न्यर्बुदं च समुद्रस्य मध्यं च अन्तश्च परार्तश्च इमामे अग्निष्टगाधेनवः सन्ते इन्द्राय नमः अग्नये नमः कराय नमः नन्दये नमः वरुणाय नमः वायवे नमः कुबेराय नमः ईशानाय नमः अग्नये नमः जातवेदसे नमः सहोदसे नमः अजराप्रभवे नमः विसर्पणे नमः वैश्वानराय नमः जातवेदसे नमः अदितेन मन्यस्व अनुपतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा षष्टिशतसहस्राण्यगितमक्षयमर्पदमानय अयन्त यद्म आत्मा जातवेदस्तेनेत्यस्ववर्तस्वदेद्वर्तयदास्मान् प्रजग पशुभिर्ब्रह्मवर्त्यसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा वायुव्यादाग्नेयान्तं प्रजापतये स्वाहा नैऋत्यादीशानान्तम् इन्द्राय स्वाहा अग्नये स्वाहा सोमाय स्वाहा अग्निशोमाभ्यागु स्वाहा प्रजापतये स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा इंद्राय स्वाहा वसुभ्य स्वाहा मरुभ्य स्वाहा रुद्रेभ्य स्वाहा आपवस्पृश्य श्री महाविष्णवे स्वाहा बृहस्पतये स्वाहा मित्राय स्वाहा वरुणाय स्वाहा आदित्येभ्य स्वाहा अस्मिभ्याग स्वाहा पूष्णे स्वाहा कक्षाय स्वाहा कक्षदेवत सोमाय स्वाहा औपासनयज्ञाय स्वाहा यज्ञदेवत विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वदेवेभ्य स्वाहा द्रव्याभिकार्या ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं सवस्वाहा ओं भूर्भवस्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसविदप्रासावीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिराजमेध श्रीनिवास स्वामिनः वैवाहिक महोत्सवाक्यञ्जकर्मणि औपासनाग्नो आघारान्ते स्वरमन्त्राक्षरक्रिया दोष प्रायश्चित्तार्थमतो देवादिशत्मैष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ओम अतो देवा अवन्दनायदा विघ्नर्विक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विघ्नर्विक्रमे त्रेधा नदधेवदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णोः कर्माणि पश्यति गतो वृदानि पस्पशे इन्द्रस्य गित्यसखा स्वाहा तद्विष्णोः परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवे चक्षुरादरग् स्वाहा तद्विप्राशोऽपि पञ्चमो जाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक् स्वाहा ओं भू स्वाहा ओं भव स्वाहा ओं सव स्वाहा ओं भूर्भुवस्व स्वाहा अदितेन्वमक्स्ताः अनुमतेन्वमक्स्ताः सरस्वतेन्वमक्स्ताः देवसविदप्रासावीः దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవరును లేరు కదలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద 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 గోవింద
పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు గోవింద 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 రచలబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని గాలిముట జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ తాలిమి నా విధి ఏమి తలచీను కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని కావనెవ్వరును లేరు కథలింతే కాని దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని దిక్కుగాని గోవింద శేషస్య సహస్రభణామణి మండల మండిరే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రదీకాఖ్య అష్టదిగ్దండి షుండాదండోత్తంభిరే అమరాపదే తేజోపదే సంయమనే రక్షోపదే సిద్ధుపదే గంధమత్యలకాపదే కిశోపదేత్యష్టదేవపురీ విరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిర్దవర్ణవాయుకుబేర ఈశానాఖ్య అష్టలోకబాలక పరిపాలితే లోకాలోకాజలవలయతే లవణేక్షుసురా సర్పితరిక్షేర సుత్తోదకాఖ్య సప్తార్ణవపరివృదే జంభోప్లక్ష కుశక్రౌంచ శాకశాల్మలి పుష్పరాఖ్య సప్తద్వీపద్వీపదే మాహేంద్రమలయ సఖ్య అదృక్షద్వింధ్యపారయాత్రాఖ్య సప్తకులపర్వత విరాజితే భారత కిం పురుషహారీనావృతపత్రాశ్వకేతుకమాలక హిరణ్యకరమణక గురువర్షాఖ్య నవవర్షాణాం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకసేరుతామ్రకభస్తి పున్నాక గంధర్వ సౌమ్యవర్ణ భరతాఖ్య నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మమ అనేక జన్మసు ఇహ జన్మని చ ఏతత్ క్షణపర్యంతం బాల్య యౌవన కౌమార వార్తికేశ రహసి ప్రకాశే చ ఆవృత్త అనావృత్త మహాపాతకాది సమస్త దురితక్షయార్ధం దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశ్యానాం మాతృవంశ్యానాం సర్వేషాం పితॄణాం కుంభీబాగలోహితధామాతపసంఘాతకాలసూత్రాది వివిధేభ్యో మహాఘోరేభ్యో నరకేభ్యః ఉత్తీర్య తిలైః సూర్యమండలమర్యంతం కృతరాశేర్వర్షసహస్రావధానే ఏకైకతరాపకర్షణక్రమేణ సర్వరాస్యపకర్షణ సంహితకాలే శ్రీహరిలోకే నివాససిత్యర్థం త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమ అతిరాత్రాప్తోర్యామశాంతపణ వాజపేయ పౌండరీకాశ్వమేధాధి శతకృత పుణ్యఫలావాప్యర్థం ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్యలోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్య పదమితి చతుర్విధ మోక్షఫలసిత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రీపదే పురుషోత్తమస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండనాయకస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార స్వరూపస్య శ్రీ భూనీలాసమేత శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః శ్రీ విఘ్నోమనేంద్రమదానసారవిర్భృక్వాదిభిర్వశిష్టాదిభిः దివ్య మహర్షిభిः రిక్తగుహ్య ధర్మపురాణ ఇతిహాస కల్పోక్త సకల ఫలావాప్యర్థం కన్యాదానం కరిష్యే. ఓం అస్య శ్రీమదాదినారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య
दिव्यमंगल विग्रहस्य सिंहचक्रशार्ङ्गकौमोदगी नन्दकस्य श्रीमतो वैकुण्ठनायकस्य श्रीमद्वैखानस भगवत शास्त्रोक्तमार्गेण आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य परव्यूह विभव अंतर्यामि अर्चावतार रूपस्य श्री महाविष्णोः परब्रह्मणो नप्त्रे आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य जगत्कारण भूषस्य मूल प्रकृते स्वकीयमानस्य त्रिगुणात्मकस्य गुणत्रय कर्मणोऽख्याति वशात् उत्पत्ति स्थितिलय कारण भूषस्य श्री महाविष्णोः परवासुदेव शर्मणः पौत्राय आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य समस्त देवता निकुटमकुटमणिगण विजृम्भित पादारविन्दस्य श्री महाविष्णोः आदिनारायण शर्मणः पुत्राय आङ्गीरसवारहस्पत्य भारद्वाजत्रयाऋषेय प्रवरान्वित भारद्वाज गोत्रोद्भवाय भक्तलोक परिपालनाय किरीटहार केयूर दिव्याभरण भूषिताय दिव्यपीताम्बरधराय दिव्यमाल्योभिः शोभिताय निजावताराय स्वर्णगरुड वाहनारूढाय अचिन्त्य दिव्याद्भुत नित्य यौवन स्वाभाव लावण्य तेजो रुद्राकराय अखिल शाखाध्यायिनौ श्रवण नक्षत्रे मकर रासौ जाताय श्री श्रीनिवास परब्रह्मणे वराय ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिने भार्गवत्स्यमन आप्नवान और्ववैदल मञ्जारुषेय प्रवरान्वित भार्गवसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारमतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः वक्षस्थल निवासिनीं अजोनिजां भृगोः सङ्कल्पदनयाम् उत्तरफल्गुणी नक्षत्रे कन्या रासौ जातायां श्री श्रीदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि ऋग्यजुस्सामा धर्मण सकल वेदाध्यायिनीं काश्यप आवत्सारणी ध्रुवत्रयाऋषेय प्रवरान्वित काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सर्वाङ्गना सम्मोहन संसेवित पादारविन्दां श्री महाविष्णोः अत्यन्त मनोहरीं अत्यन्त सौन्दर्यवतीं बहु श्यामलाङ्गीं कश्यप प्रजापतेः सङ्कल्पदनयां रेवती नक्षत्रे मीनरासौ जातायां श्री भूदेवी नाम्नीमिमां कन्यां दास्यामि कन्यां कनक संपन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकजगीर्षया कन्यां सालङ्कृतां साध्वीं सुशीलाय सुमेधचेत् प्रयतोऽहं प्रयच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये विश्वम्भरा सर्वभूता साक्षिण्यः सर्वदेवताः मिमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणातु कमलापतिः कन्यादानमुहूर्तः सुमुहूर्तोऽस्तु திருக்கல்யாணத்திற்குரிய அனைத்து கிரமங்களையும், அதாவது மணமகனுக்கும் மணமகளுக்கும் என்ன சொத்து பத்து இருக்கிறது என்று எல்லாவற்றையும் சொல்லிவிட்டு இப்பொழுது திருமாங்கல்யத்திற்குரிய கிரமங்களை அர்ச்சக சுவாமி திருமலையப்பன் திருவடி வாரத்தில் சமர்ப்பித்து அதற்குரிய கிரமங்களை செய்ய இருக்கின்றார். இப்படி எம்பெருமானுடைய ஆச்சரியமான திருக்கல்யாண குணங்கள் பக்தர்களுக்கு அருளும் பொருட்டு, இந்த உலகத்தை காக்கும் பொருட்டு உள்ள இந்த குணாதிசயங்களை பொய்கை ஆழ்வாரும் சற்று ஒரு பாசுரமாக சாதித்தருளியுள்ளார். பாலன் தனதுருவாய் ஏழுலகுண்டு ஆலிலையின் மேல் அன்று நீ வளர்ந்தது மெய் என்பர். ஆல் என்று வேலை நீர் உளதோ விண்ணதோ மண்ணதோ சோரை சூழ் கொண்டெடுத்தாய் சொல்லு என்று எம்பெருமானை மடிப்பிடித்து கேட்கிறார் இந்த பொய்கையாழ்வார். பிரளய சமயத்தில் உலகங்கள் அனைத்தையும் சிறிய வயிற்றில் அடக்கி வைத்துக்கொண்டு அழியாமல் காத்து ஆலி நிலை மேல் ஒரு பாலகனாய் அன்று துயின்றது உண்மை என்று தெளிந்த வைதிகர்கள் கூறுகின்றனர். சரி, இது போதாது என்று கண்ணனாக அவதாரம் செய்தபோது கோபியர்களையும் ஆனிரைகளையும் கோவர்த்தன மலையை கையிலே எடுத்து தாங்கி நின்று காப்பாற்றி இருக்கின்றான். நீ கிடந்த ஆலிலை அலை மோதும் கடலில் இருந்ததா அல்லது ஒரு பிடிப்புமே இல்லாத ஆகாயத்தில் மிதந்து கொண்டிருந்ததா என்று பெருமான் பதில் சொல்லித்தான் நம்மை தெளிய வைக்க வேண்டும் என்று பொய்கையாழ்வார் பெரு வியப்புடனே கண்ணனை குறித்து கேட்பதாக அமைந்துள்ள பாசுரம் இது. ஆழ்வாரே இப்படி கேட்பதென்றால் நம் பொருட்டு நமக்கு என்ன தெரிய போகிறது? நமக்கு வேண்டியது பலன். அதை அளிப்பவன் அக்கட்டித்த கட்டத்தான சாமர்த்தியத்தை உடைய இப்படி ஆளிலை மேலே, ஒரு சாதாரண ஆளிலை மேலே சமுத்திரத்திலே படுத்து கொண்டிருப்பான், பூமியையும் தாங்கிக் கொண்டிருப்பான் என்றார். அக்கட்டித்த கட்டனான சாமர்த்தியவான் நமது குறைகளை, கலிகளை, நோய்களை தீர்ப்பதற்கு எம்மாத்திரம் போகிறது? ஒரு திருநாமத்தை சொல்வதாலே நம்முடைய அனைத்து பாப்பங்களையும் தீர்க்கின்றான் என்றால் இந்த திருமதை ஏற்றத்திற்கு பதில் சொல்லவும் வேண்டுமோ
இப்படி உலகங்களை காக்கும், உலகின் கண் வாழும் அனைத்து ஜீவர்களையும் காக்கும் பொருட்டு காருண்யத்தின் எல்லை நிலமாகவே தன் வயிற்றிலேயே வைத்து காத்து ரட்சித்து கொண்டிருக்கிறான். இப்பொழுதும் காத்து கொண்டிருக்கின்றான். தன் திருமேனியை ஆழ்வார் அந்த அப்படிப்பட்ட அழகான திருமேனியை அனுபவித்து விதவே ஏற்றமுடையதாக இருக்கின்றது என்பதை பூர்வர்களின் கருத்தாக அமைந்துள்ளது. மற்றொரு குணம் இவனுக்கு மாதுரியம் என்னும் குணத்தை கூறுகின்றது. மாதுரியம் என்றால் அதாவது இது இந்தபடியாக காப்பாற்றும்படியான இது தொடர்ச்சியாக அமைந்துள்ளது இந்த மாதுரியம் என்ற குணம். மாதுரியம் என்றால் மதுரனாக இருக்கை, அதாவது இனியவனாக இருக்கை. யாருக்கு இனியவனாக இருக்கை? இவனை அண்டி வரும் பக்தர்களுக்கு மட்டுமா? அனைவருக்குமே இனியவனாகத்தான் இருக்கின்றான். இவருக்கு கசப்பு, இனிப்பு, விரோதம், துக்கம் என்று எதுவுமே இல்லை. அனைவரும் இவனுடைய குழந்தைகள் தான். நாம் பாராட்டுவதில் தான் இருக்கிறது அவனை அடைவது, அடைய முடியாமல் இருப்பது என்ற தடுப்பு சுவர். நமக்கும் அவனுக்கும் இடையே உள்ள தடுப்பு சுவர் நம்முடைய பஞ்ச இந்திரியங்கள் படுத்தும் பாடு. நம் புத்தி, மனம், எண்ணம், செய்கை இவற்றால் தான் ஏற்படுகிறதை அன்றி அவனுக்கு எதுவுமே இல்லை. இனியவனாக இருப்பான் இவன். எல்லோருக்கும் இனியவனாக இருப்பது என்ன? நம் சொல்படி, நம் எண்ணப்படி நடந்த, அதாவது அவன் நடக்கையாலே தான் நமக்கு இனிமையாகத்தான் இருக்கிறது. அதாவது நம் சொல்படி, நம் எண்ணப்படி என்று சொல்கிறோம். எப்படி நம் சொல்படி? நம் சொல்படி, நம் செய்கைப்படி அவனை வேண்டுவதாலே அது அமைகிறது. அந்த வேண்டுதல் செய்ய வேண்டும், அவனை அண்டி நிற்க வேண்டும், நம்மை ரட்சிக்க வேண்டும், நம்மை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று எண்ணம் வேண்டும், சொல்ல வேண்டும், பக்தி செலுத்த வேண்டும், அத்தனையும் செய்ய வேண்டும், பக்தர்களோடு கூடி இருக்க வேண்டும். அப்படி இல்லாது இருந்தால், தடுப்பு சுவர் இருந்தால் நம்மை இனிமை அடையாது, அவன் அருள் கிட்டாது என்பதே இவ்விடத்தில் உள்ள உட்பொருள். அதை உதாரணத்துடன் பூர்வாச்சாரியர்கள் விளக்கியுள்ளனர். தன்னை எதிரியாக நினைப்பவர்க்கும் இனியவனாக இருக்கிறான் இவன். ஆகவே இது மாதுரியம் என்பதாக பூர்வர்களின் விளக்கம். பாரத யுத்தம், குருட்சேத்திர இனியவனாக நினைப்பது இவன் எண்ணம் இல்லை. எதிராளி நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவனை எதிரியாக. ஆனால் இவனுக்கு அந்த எண்ணம் இல்லை. இவன் செய்வது செய்து கொண்டே போகின்றான். அதைத்தான் இவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கின்றான். நம்மை எவராவது ஒருவர் இப்பொழுது பெருமானுக்கும் முன்பு சமர்ப்பித்து அனைத்து கிரமங்களையும் செய்வித்த இந்த திருமாங்கல்யத்தை பிராட்டிமார்களுக்கு முன்பு அந்த திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பித்து அதற்குரிய கிரமங்களை செய்வித்து மேலே திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க இருக்கின்றார் அர்ச்சக சுவாமி. மங்களங்கள் பெருக, மங்களங்கள் முன்தோட்ட ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு திருமாங்கல்யத்தை சமர்ப்பிக்க இந்த வேளையில் அனைத்து பக்தர்களின் மனமுருகி பிரார்த்தித்து அனைத்து பங்குகள் நிச்சயமாக பெறுவார்கள். ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே சாதீவ சரதசதாம். ஸ்ரீதேவ்யே நமः. மாங்கல்யதாரண முகூர்த்த சுமுகூர்த்த அஸ்து. ஓம் பிரஜாபதி சோமகும் ராஜா நமஸ்ருஜதா தந்திரயோ வேதா அன்வஸ்ருத்யந்தா தான ஹஸ்தே குருதா அதஹ சீதா சாவித்ரி மாங்கல்யம் தந்துநானேன லோகரக்ஷக ஹேதவே கண்டே பத்னாமி சுபகே ரக்ஷத்வம் புவனத்ரயம். ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन्ते वो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रम् धारयताम् ध्रुवम्. भूदेव्यै नमः. माङ्गल्यधारण मुहूर्त सुमुहूर्तो अस्तु.
मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा इमान् लाजानामित्यभिघार्या ॐ इमान् लाजानापपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निर्नुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ उदायुषा स्वायुषो दोषधीनाकुम्रसेनोत्पद्यन्यस्य सुष्मेनोधस्ताममृताकुम् अने विश्वाभुतत्वया वयं धाराभुतन्या इव अतिगाहे महित्विषः ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ इमान् लाजानावपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननां तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्युबभ्रूतेऽग्नौ लाजानावपन्ति दीर्घायुरस्तु मे पतिरेधन्ताम् ज्ञातयो मम स्वाहा ॐ भूस्वाहा भुवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतीन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्जकर्मणे उपासनाग्नो सर्वप्रायश्चित्तार्थं मतो देवादि षट्मयीष्टमहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा ॐ मतो देवा अवन्तनो यतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्तधामभिः स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा दधे पदं समूढमस्य भागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपादाभ्यः ततो धर्माणि धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतो व्रतानि पश्पशे इन्द्रस्य यज्ञस्सखा स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सूरयः दिमेव चक्षुरादर्ग स्वाहा तद्विप्रासो पञ्चमोजाग्रभागं सस्यमिन्धरे विष्णोर्यत्परमं पदक स्वाहा ॐ भूस्वाहा ॐ भवस्वाहा ॐ स्वस्वाहा ॐ भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविदप्रासामीः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणस्य श्री भूनिनासमेत श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवाकिञ्जकर्मणि उपासनाग्नो कर्मधात्पुण्यार्थम् उपरिष्टादन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व नमदेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसविदप्रसुवा एतस्य कर्मणोतिरीरजं यत्वान्योनविहाकरम् अग्निष्टस्विष्टकृतित्वान् सर्वकृस्विष्टकं सहरं करोतु स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते जुहुतहुताहुतेन कामानाकं समर्थयित्रे स्वाहा अग्नये स्वाहा अग्नये नादाय स्वाहा अग्नये नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतमवस्मै स्वाहा अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दाभूतग्निस्तत्प्रदाः आर्जातवेदाभिचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदातुरनिन्द्रो बृहत्पतिः पुनर्मे अस्विनाजिवञ्चक्षुरादत्तमक्षो स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वशनिष्टेभ्य स्वाहा भेषदृष्ट्यै स्वाहा स्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा दैवीभ्य स्वाहा तनूभ्य स्वाहा ऋद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा येधोऽस्येधि श्रीमहि स्वाहा समितस्य तेजोऽसि तेजोमयिधेहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे बाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे बाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे बाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे बाहि स्वाहा ब्रह्मणो धीमहि बुद्धिं मे बाहि स्वाहा सप्तदे अग्ने समित सप्तदिक्मा सप्तऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयो नीरापणत्वा कृतेन स्वाहा ऋतधान विद्वान् नष्टभृतेन पूर्णमाहुदिञ्जुः मिमनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भक्तं वेदर्भक्तं जौर्भक्तं पृथिवीभक्तं वोषधिवनस्पतिकं धर्वाप्सरसश्चैव भक्तम् अग्निर्जैनं वेदर्जैनं जौर्जैनं पृथिवीजैर्नं वोषधिवनस्पतिकं धर्वाप्सरसश्चैव जैर्नं समन्ताम्बरहिरः विजाकृतेन समादित्यैर्वसभिः सम्मर्द्भिः समिन्द्रेण विश्वेभिर्देवेभिरङ्क्ताम् दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा आद्यशेषम् इंद्राय जुहोमि स्वाहा अग्निस्तृप्यदो वेदस्तृप्यदो द्यौस्तृप्यदो मृदुवेदप्यदो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्तां वोषति वनस्पति गन्धर्वाप्सरसश्चैव तृप्यन्तां मे दक्षिणदर्पितर्पिता महाप्रभदा महाश्चाक्षं यमस्तु तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः नमदेन्वमग्रस्ताः
देवसविदप्रासावीः आवाहनदेवताभ्यो नमः यदासकं यदा स्थानं प्रवेशयामि पवित्रमसि पवित्रं मे भूयात् स्वाहा पूर्णमसि पूर्णं मे भूयात् स्वाहा सदसि सन्मे भूयात् स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूयात् स्वाहा ज्येष्ठाः वरिष्ठागक्वरेष्ठोऽग्रं वचो अपावधीन् त्वेषं वचो अपावधीग स्वाहा ऊर्ध्वं यज्ञन्नयदं माजीक्वर्धमत्रमेधां पश्मन् पृथिव्या दिवो वा विष्णवत वा पृथिव्या स्वाहा पश्चिमतः परिधिमपनया दक्षिणतः परिधिमपनया उत्तरतः परिधिमपनया पश्चिमतो विष्णोः सदनमसि दक्षिणतो विष्णोः सदनमसि उत्तरतो विष्णोः सदनमसि प्रात्यां विष्णोः सदनमसि सर्वानन्यान् प्रसमोक्ष्या ग्रन्थीन् विसृज्यार्भिप्रोक्ष्य आप्यायन्तामिति जुहोति आप्यायन्तामापवोषधयो मरुतां पृषदयस्थदिवं गच्छतो न वृष्टिमेरय स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनगुं शुद्ध्यन्तां देवसदनम् भूतिस्मादेर्लभते नित्यगुं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयो भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपस्य त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय सिताय सितं च वर्चसे त्रयायुषम् आपोहिष्टामयो भवस्तानपूर्जे दधातन महेरणाय चक्षसे न्योपश्यवतमोरसस्तस्य भार्गते हनः उशतीर्व मातरः तस्मारङ्गमामवो यस्य क्षया जन्मधः आपो जनयथा जनः यत्तेऽग्ने तेजस्तेनाहं तेजस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने वर्चस्ते नाहं वर्चस्वी भूयासं यत्तेऽग्ने हरस्तेनाहं हरस्वी भूयासं मयमेधा मय प्रजा मयज्ञस्तेजो दधात मयमेधा मय प्रजा मयेन्द्रयन्द्रयन् दधात मयमेधा मय प्रजा मय सूर्य भ्राजो दधात् मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं वदासनाय कृन्दमया देव परिपूर्णं तदस्ते प्रागश्चित्तान्यशेषानि होमकर्मात्मकानि वै तानि शेषावशेषाणां कृष्णानुस्मरणं ब्रह्मकार्येण वाजामनसीन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्रघ्याजमनीयं समर्पयामि यदासकं यदा स्थानं प्रवेशयामि गुडोपहारं निवेदयामि आज्योपहारं निवेदयामि अग्निपुरुषाय नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि भगवत्समारोपणं सर्वं श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु यज्ञेश्वराय नमः यथासुखं यदा स्थानं प्रवेशयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च सर्वं श्री भूनीला समेत श्रीनिवासार्पणमस्तु सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु லாஜஹோமம் என்னும் அதாவது திருமணத்தில் மங்கைமார்கள் பத்னிகள் தன்னுடைய கணவனுடைய ஆயுசு முன்னிட்டு லாஜஹோமம் என்று அக்னியில் பொறிபுகந்து அட்டுவது மேலே இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி திவ்ய தம்பதிகள் செய்யும்படியான திருமணத்திற்கு பின்பு செய்யும்படியான இந்த தேங்காய் உருட்டும் இந்த கிரமத்தை செய்வித்து மேலே மாலை மாற்றல் அதன் பின்பு அக்ஷதை பரிமாற்றங்கள் நடக்க இருக்கும் முன்பு அர்ஜுனனுக்கும் அதாவது பீஷ்மாச்சாரியாருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையே கனல் பறக்கும்படியான யுத்தம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது. யுத்த பூமியில் பீஷ்மர் வயோதிகர் அர்ஜுனன் மீது மிகுந்த பற்று உடையவர். எனினும் யுத்த தர்மத்தை மீறாது பாணங்களால் அர்ஜுனனை வீழ்த்த நினைக்கின்றார். கடைசியில் போராடியும் முடியாது போக அர்ஜுனன் தேர்தட்டில் சோர்ந்து சாய்ந்து விட்டான். இந்நிலையில் அர்ஜுனனை காப்பாற்ற எண்ணிய கண்ணன், அர்ஜுனனின் சாரதி கண்ணன் அல்லவா, பீஷ்மரிடம் தான் ஆயுதத்தை எடுக்க மாட்டேன் என்று சபதம் செய்தும் தேர் சக்கரத்தையே தன் சக்கராயுதமாக கொண்டு தேர்தட்டிலிருந்து பீஷ்மரை நோக்கி சேனாதூடிதூ சரித்தமாக சுருண்ட குழல்கள் குலுங்க குலுங்க ஓடுகின்றான் பீஷ்மரை வதம் செய்வதற்காக கண்ணன். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி பெருமான் சாற்றிக்கொண்ட அந்த மாலையை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கு அந்த மாலையை மாற்றல் தோள் மாலையை மாற்றி மேலே
தாயார் சாற்றிக் கொண்ட அந்த மாலையை பெருமானுக்கும் பிறகு அதே கிரமத்தில் பூமி பிராட்டிக்கும் இந்த மாலை மாற்றல் நடந்தே இருக்கின்றது. பீஷ்மரை நோக்கி சக்கர ஆயுதத்துடன் கண்ணன் கருப்பன் ஓடுகின்றான். பீஷ்மரை வதம் செய்வதற்காக இதை கண்ணுற்ற பீஷ்மாச்சாரியாருக்கு அளவற்ற ஆனந்தம் ஏற்பட்டது. ஒன்று, அவன் தன்னை நோக்கி ஓடி வரும் அழகு, குலுங்க குலுங்க சுருள் முடிகள், மைவண்ணன் நறுங்குஞ்சி குலுங்க ஓடி வரும் அழகையும், கையிலே அந்த ஆயுதம் இல்லாது தேர் சக்கரத்தை எடுத்துக்கொண்டு ஓடி வரும் அழகு. மற்றொன்று, ஆயுதம் எடுக்க மாட்டேன் என்று தன்கிட்டே சபதம் செய்தவனை எடுக்க வைத்தது தன்னுடைய ஆற்றலை. அந்த பக்தி பாரவசியத்தோடு பீஷ்மாச்சாரியார் கண்ணனை கண்களில் நீர் சொரிய நன்றாக சேவித்துக் கொண்டிருக்க, அப்போது அலர்ந்த சிவந்த தாமரை போன்ற கண்களை கண்ணார கண்டு ரசித்து கொண்டு ஓடிவாடா கண்ணா, ஓடிவா, உன்னை நமஸ்கரிக்கின்றேன் தேவசிரேஷ்டனே, அளப்பதற்கு அறியாய் லோகநாதா, சர்வ பிராணிகளுக்கும் சரண் அடையத்தக்கவனாக இருப்பவனே என்று கண்ணீரும் கம்பலையுமாக பெருத்த ஆனந்தத்தோடு துதித்து தேர்த்தட்டிலிருந்து இறங்கி ஓடி வந்து பீஷ்மாச்சாரியார் கண்ணனின் திருவடிகளை பற்றியிருக்கின்றார், பிரார்த்தித்தார். ஏஹே வஹி ஏஹே ஹி புல்லாம்புஜ பத்திர நேத்திர நமோஸ்துதே தேவரா பிரமேய பிரசஹ்ய மாம் பாதைய லோகநாத ரதோத்மாத் சர்வசரண்ய சங்கையே என்று இதை எதிர்பார்த்தது போல ஓடி வந்து சரண் அடைகின்றான். ஆக எதிரியாக இருந்தாலும் அவர்கள் பிரார்த்தித்தபடியே தன்னை காட்டிக் கொடுக்கின்றான் இந்த கண்ணபிரான். ஆக பக்தர்களுக்கு எப்படி காட்டிக் கொடுப்பான்? இப்படி சேவிக்கும்படியாக செய்வான், அருள் பாலிப்பான். இந்த ஒரு அஞ்சலிக்கே அத்தனை பலன்களையும் பெற்றுத்தர வல்லது அந்த அஞ்சலி. மேலே அவனுடைய திருநாமத்தை சொல்லுபவர்களுக்கு மேலும் தேண்டாத பலன்களையும் தேடாத பலன்களையும் தந்து அருள்வான் இந்த கோவிந்த குட்டன். கிருஷ்ணா கண்ணா என்று விழித்து தன்னை அவனது வடிவழகை காட்டி கண்ணை உருட்டி வெல்லலாமே அன்றி ஆயுதம் காட்டி தன்னை வெல்ல இயலாது என்று காமித்து கொடுத்தான். இப்பொழுது அர்ச்சக சுவாமி அக்ஷதை பரிமாற்றங்கள் செய்ய, மங்களங்கள் நிறைய வாழ்த்தி పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు, పేరంటాండ్ల నడిమి పెండ్లి కూతురు, విభు పేరు పుచ్చ సిగ్గుబడి పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు.
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ